To write a good answer, you have to change your pattern of reading. One philosopher is there, Sartre. He says doubt in everything. But later on say doubt in everything. But once you have belief. Today my purpose is to debunk the myth that for every question I have to read a lot. And to explain to you same content, you have to apply your mind, you have to slightly change, and all the question can be done. So for that I have taken the topic of population. And other my purpose is to write a good answer. You have to change your pattern of reading. The pattern of reading. So I will explain you the topic through the way कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे and how to read critically. And if you know something, how you can derive the other points. That is my purpose today. And these things we will consolidate through subject wise. GS2, GS4, 3, 1. There we will consolidate. And we will develop the skill. Once that skill is there, so that we can apply in all other topics. What is the point? That's why I have taken the topic of population, which we know what is this. What is this? So, today, the purpose is answer writing, and through answer writing, how to read. In answer writing, first, the basics are, we have to find out the demand. Next basic is, we have to generate the points. Points means, whatever content we have, when demand is there, how we can generate the point. Then, whenever I have generated the point, how I can frame the structure. Then we will go to the, now we have a clarity that we have to write the answer. Now, how you can believe that what I am telling you, that is the right way? Because 2 साल तो पहले भी गन चक्कर हो ही चुके हो कि ये करोगे तो आंसर राइटिंग आ ही जाएगी. Am I right? So today my purpose is also all these steps I will take today only, and will show you how answer will come. So that in next lectures when I will take, I will not go for all these 3. Step by step I will proceed. Because that clarity should be there. Clarity should be there. So that when I will follow this path, that will come. That will come. Because otherwise क्या होगा, तुम बिलीव सर बोल रहे हैं आएगा आएगा, मतलब आया ही नहीं, आया ही नहीं. सो क्योंकि मुझे पता है कि वो फास्ट हो जाएगा, तो थोड़ा भी समझ में आएगा, तो लेटर ऑन विल बिलीव एंड वी विल वर्क. Will believe and work. One philosopher is there, Sartre. He says doubt in everything. But later on say doubt in everything. But once you have belief, अपने आप को सुपुर्द कर दो. ये मेरा क्वेश्चन हुआ था गरिमा से. एक बार सेक्शन की बात गरिमा आई थी, रैंक 118 फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैंने कहा कि तुम्हें डाउट करना चाहिए था मेरे पर, कि सर डाउट तो किया था, बट एक बार डाउट होने के बाद पूर्ण आस्था होनी चाहिए, अभी सिलेक्शन हुआ, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता. तो तुम्हें शुरू में क्या करना है, डाउट करना है. क्योंकि वो डाउट नहीं किया तो 2 साल 3 साल क्या हो रहा है, चक्कर ही चल रहा है. बट वंस द बिलीफ इज देयर, फॉलो द स्ट्रेटेजी, फॉलो द स्ट्रेटेजी. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन. I will open the themes of population, all the themes. Then I will take one aspect of population. Tomorrow I will cover the population. Because अगर तुम लोगों ने मेरी क्लासेस पिछले साल देखी है, तो I used to take the water for the initial classes. But later on मेरे को जो बच्चे उनसे फीडबैक आया, जो सिलेक्टेड हो, सर वो वाटर की क्लास बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है. इसलिए मैंने टॉपिक क्या कर दिया, चेंज कर दिया. टॉपिक क्या किया है, चेंज. और पॉपुलेशन हमारे नजदीक, बिकॉज
we live in that society. We live in that society and we observe. We observe what is happening in our surrounding. तो तुम्हें 3-4 चीजें पर्पस क्लियर होना चाहिए. I have to change your reading habit, how to read. I have to show each steps of answer writing, how they will actually work. How will they actually work and how I will frame the answer so that by this component जो है वो क्लियर हो जाए. Because otherwise answer writing focus कहाँ है? On the answer, not on all these aspects which are tangible or intangible. Demand, point generation, structure are tangible or intangible? Intangible. Answer is tangible. And other aspect I have to show, but I will clear tomorrow. I know X thing. I know thing X. Question has been asked on Y. This Y is related to X, but I don't know the meaning of Y. But through X, how I can know the meaning of Y? And when they are asking the question, even if I am not hitting the core, how I can answer at the periphery? And these type of questions are very tough. Like question of demographic winter last year, question of twister last year. But people have done. People have done. And my classes, you don't have to believe what I'm saying. When I'm saying, you have to question, sir मुझे बताओ आपने सोचा कैसे? समझ में आया? Because live answer writing चलती है, क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूं. कंटेंट किसका है? मेरा या तुम्हारा? तुम्हारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए सीखने के लिए? How I understand. या अगर तुम्हारा कंपटीटर सोच रहा है तो उससे क्वेश्चन करना, तुमने एक पॉइंट सोचा कैसे? तब क्या होगा? वो fear that will break. Fear will break. तब तुम इसके चक्कर में नहीं जाओगे. Will not go after content collection. You are here to become a collector, but have become a content collector. Become a content collector. Clear? मैंने ये एक स्नैपशॉट दे दिया है, तो आगे तुम्हें क्लैरिटी रे चलेगा क्या? ठीक है? कहीं पे डाउट हो, क्वेश्चन पूछना है. इसलिए जो ऑनलाइन है वो ऐप से डाउनलोड कर देना, और कल मैं ग्रुप बना दूंगा और सारा कम्युनिकेशन हमारा मेल पर और ग्रुप पर, ताकि जो ऑनलाइन है उनका भी, और कोई भी मटेरियल कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी डायरेक्शन चाहिए होगा, तो तुम्हें वहां पर, अगर तुम्हारा कुछ वीक भी है फाउंडेशन में, तुम्हारा नहीं होगा सबका होगा, तो पूछ सकते लेना. अगर वो जो अप्रोप्रिएट कंटेंट होगा मैं बता दूंगा. अगर मुझे इग्नू का बताना होगा, इग्नू का, देखो मैं बिलीव करता हूं ओरिजिनल रीडिंग में, मैं नोट्स में बहुत कम बिलीव करता हूं. वो तो मार्केटिंग की मजबूरी में क्या है, देना पड़ रहा है. अदर मैं बिलीव करता हूं किसमें? ओरिजिनल. अगले वीक तक जीएस पेपर 2 क्वेश्चन कंटेंट और पीवाईक्यू मिल जाएंगे, बट वो तुम्हें अभी जब मेरी क्लास करोगे ना, उसे समझ में आएगा पढ़ना कैसे. बिकॉज इन मार्केट वन मोर शिगोफा इज देयर, 1 पेजर नोट्स. मैंने दिया 1 पेजर नोट्स ही, बट 1 पेजर नोट्स को पढ़ना कैसे वो भी सीखना है. ठीक है? करेक्ट? ऑनलाइन वाले भी डाउट पूछते रहना. So I am taking the topic of population, but before going, we will see the question. Population and associated issue are there in your syllabus. इसको मत छोड़ो, भी बंद कर दो. Population and associated issue are there in which part of your syllabus? सिलेबस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये तो बहुत ब्लंडरी हो गया. GS1. In GS1 where? Society. In society. But matter for the population you read where? The way they are asking. In geography. Population and the society issue is topic in your society in GS paper 1. But the content and the way they are asking, that matter is there in NCERT, 12th class, geography. And they are picking the question
from geography optional. So when I will take the question, I will take the PYQs plus other optionals, because तुम्हें ना द कोर को क्लियर करना है, ना किसी XYZ कोचिंग को क्लियर करना है, तुम्हें कैच किसको करना है? PSC. Clear? Now in population and resource issue, these 4 questions are there. Critically examine whether growing population is the cause of poverty or poverty is the main cause of population. Second, discuss the main objective of population education and point out the measures to achieve them in India in detail. Next, concept of demographic winter. Is the world moving towards that? Then, distribution and density of population in the Ganga river basin with special reference to land, soil and water resource. These will do tomorrow. आज मैं पॉपुलेशन को ओपन करता हूं और जो भी हमारा कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा थीम वाइज, और थीम पहले तुम्हें बहुत क्लियर होनी चाहिए. अगर थीम क्लियर है, तुम्हारे पास उस थीम का पूरा कंटेंट भी नहीं पता है, वन एस्पेक्ट यू नो, तुम सारा कंटेंट ड्राइव कर लोगे. तो आंसर राइटिंग लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? फियर दूर होना है कि मेरे पास क्या है, कंटेंट है. Content is not in the form of reading, but in your head, where you can open. Clear? Today, population. So when I will open the population, in population, all these are there. Further, they can be divided. In population, first aspect is growth and factor. Why population is growing? What are the factors for population growth at the world level and India level? In this context, in geography, NCERT, you read diagram 1800 to year 2000 in world geography. For India, you read 1901 to 1921, 1921 to 1951 diagram, 1952 1 to 80 or 90 diagram. Then there you read growth and factor. Then other is what is the distribution and density. And this year, the last year, question on this. So this is your chapter settlement in NCERT. Wet point settlement, dry point settlement, compact settlement. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? NCERT में है कि नहीं? देखो कोचिंग के नोट्स में तो नहीं है, ये तो मेरा गारंटी है. NCERT में है, पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन तो वही है. बिकॉज पहले क्या होता था, when question is not coming, लोग बुक्स उठाते थे 10. आज क्या हो रहा है, नोट्स उठाते हैं 10. X कोचिंग का नोट्स, Y कोचिंग का नोट्स, Z कोचिंग का नोट्स. बट हमें बिलीव क्या करना, जो मेरे पास है वो सफिशिएंट है, मुझे उसी से क्या करना है, चीजें ड्राइव करनी. देन कंपोजिशन एंड एट्रीब्यूट्स, IMR, MMR, CDR, क्रूड डेथ रेट, CBR, क्रूड बर्थ रेट. These are for the prelims, but they can go for the IMR as well in the mains. Then population theories. Population theory in general, not deep down particular. Like what Malthus is saying, what Marx is saying. But what is the criticism? Critically examine. These are in the optional. And demographic transition theory or demographic transition model. Then population policy, national population policy year 2000. And this topic will be most important for coming 5 years. Why? Census. और अगर योजना आती है तो योजना पिकअप करनी है. अगर योजना इस पर आती है तो. Then migration. Already UPSC asked 2 questions. 2 questions. Best content is there in NCERT. बट मैं कंटेंट दूंगा इसका तुम्हें. ज्योग्राफी में आएगा, माइग्रेशन दूंगा. Here your international migration report. Some data, some facts. Then topic is poverty, and poverty is the theme. Paper 1, paper 2 and paper 3. Then theme, aging or elderly population. Silver economy. Demographic dividend 2.0. Demographic dividend 2.0. Yes. Then demographic dividend. Demographic dividend as a concept, they are asking in which paper? In 3, under which heading?
इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तुम्हें मेरे साथ सारे पीवाईक्यू की थीम सब पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से है, टिप्स पे होनी चाहिए पीवाईक्यू। देन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। And I'm not saying you have to read deep down, but once this clarity is there, that will help in point generation. That will help diversify. Horizontal expansion. Vertical expansion is your concept. This will help in horizontal. And here I am taking for today's class to explain you how to read, then how to find out demand, point and structure. I am taking the topic of population policy, and here I am taking the topic of family planning. Family planning. And to explain the demand, point generation, structure, and how we will proceed, I am taking question at 3 level. Level 1, level 2 and level 3. कि मैं सेम कंटेंट कहाँ का यूज हो, मुझे कैसे डिमांड फाइंड आउट करना है, कैसे पॉइंट को जनरेट करना है, और कैसे क्या बनाना है स्ट्रक्चर। फैमिली प्लानिंग, कोई पेन कोई नोट्स नहीं उठाएगा, और थोड़ा इंटरेक्शन रखना। टॉपिक इज ऑनलाइन जो है कॉपी पेन पर दिमाग चलाते रहना, बस क्लास मत करना। फैमिली प्लानिंग। व्हाट इज योर हैबिट? लेट्स से आई एम सेइंग दिस टॉपिक आई हैव टू रीड। व्हेन दिस टॉपिक आई हैव टू रीड, what is our current methodology to read that topic? And whatever I am saying, this will apply universally. How? Let's, अगर ये टॉपिक है, मेरे नोट्स में किस प्रकार होगा? ठीक है, पहले फैक्ट्स होंगे, ठीक, और ओके डेफिनेशन, ठीक है, देन Ishita, Astik, you can ask. मैंने अभी इतना बोला है कि तुम कैसे पढ़ते हो, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता हूं, क्योंकि उससे मुझे तुम्हारी क्या चेंज करनी है, थिंकिंग। और व्हाट आर द मेथड्स, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट और लिमिटेशन और प्रॉब्लम और पे फॉर। आज से एक थिंग चेंज करना, वेन एवर यू आर रीडिंग द टॉपिक, इंस्टीड ऑफ रीडिंग द टॉपिक, बिकॉज 1-2 साल पढ़ चुके तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वेन एवर टॉपिक हैज बीन गिवन, फर्स्ट आस्क योर सेल्फ व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई दिस टॉपिक, why this topic came. Once that clarity is there, automatically all whatever you are seeking वो वहीं से drive होगी। Once that clarity is there, and UPSC mold the topic in every way, वहां से क्वेश्चन हो जाएंगे, और यही मेरे को थिंकिंग तुम्हारी क्या करनी है, चेंज करनी। So whenever a topic is there, first you have to read, or first you have to focus why this topic, means what is the origin of this topic, why this came, what is the philosophy behind this topic, philosophy behind this topic। पर इस तरह बहुत सारे क्लास में होगा तो वो क्या होगा, थिंकिंग समझ में आएगी। When I'm saying family प्लानिंग, बिकॉज इससे क्या होगा, कुछ टॉपिक मुझे एक्स देगा जो मुझे नहीं भी पता है, तो चीजें क्या करूंगा, ड्राइव करने लग जाऊंगा वहां पर। एंड यू नो 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन क्या होंगे, 20 आउट ऑफ 20 ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, तो तुम्हें नहीं आ रहा होगा, पर लिखना है कि नहीं है, लिखना है। सो फैमिली प्लानिंग लिटरल मीनिंग फैमिली, आई हैव टू, नाउ दिस कंसेप्ट मोटा मोटी इट केम इन 1952। So go into the era of 1952, visualize the situation, and then think why this concept,
Because you have read post-independence, you have a knowledge of bureaucracy, you have a knowledge of economy, you have a knowledge of world scenario. World scenario. In 1952, we launched this program. Why we launched this program? Now, you know. And you have knowledge of environment, you have a knowledge of post-independence, you have a knowledge of economy, you have a knowledge of governance. Not knowledge मतलब कुछ कुछ basics. कुछ कुछ चीजें तुम्हें क्या करवानी है, कनेक्ट करवानी है. 1947, India got independence. Resources were not there. In 1943, we have seen the famine in Bengal. Then, under PL 480, we have gone to the USA. We were literally begging. And in this context, resources were less. This cake was less. And this cake have to be distributed among many people. Many people. So, this number was our concern. Then you think, in 1898, Essay on Population by Malthus. This Malthus has been revived in 1948. Neo-Malthusian theory. Neo-Malthusian theory, where they have raised the concern. Malthus have raised the concern about the number, population, where he has said that resources are growing in an arithmetic way. Population is growing in geometric way. And that has been revived in 1948, means concern were there all over the world. Number is the problem. Number is the problem. In 1950s onwards, we have planned to launch 5-year plan. 5-year plan for the economic development. Resources were limited. Growth should have been there. But when limited resource, how we can distribute? Then at the same time, there problem of poverty. And in this phase, we have seen 1921 as a population divide. Our population was growing and it has moved towards phase 2 and phase 3 of demographic transition model, where explosion was there. In that background came the concept of family. अब देखो, ये चीजें कहीं बुक्स में लिखी ही नहीं होगी. तो जब भी तुम टॉपिक पढ़ते हो तुम्हें इस तरह सोचना है कि कहीं बुक्स में नहीं लिखी होगी. इतना तुम रिसर्च भी नहीं कर सकते. बट ये सारी चीजें जो मैंने बोली तुम्हें पता है कि नहीं पता है? एक चीज मिस हो सकती है, बाकी तो पता है ना. उस सबको क्या कनेक्ट करना, बिकॉज वंस दैट क्लैरिटी इज देयर, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा. इंट्रोडक्शन क्या बहुत अच्छा होगा. क्वेश्चन कुछ भी आएगा तुम चीजों को क्या करोगे, माउल्ड करोगे. यू विल बी एबल टू लिंक. सो नाउ आई एम गोइंग, व्हाई दिस कंसेप्ट? This concept, because number was the problem. Resources were less. Pie cake size was less. It has to be distributed among wider population. Wider population. And at the same time, India was facing problem at various front. At various front. Food security was the problem. We have gone to the USA. We have seen the famine. In that context, we have launched the family planning program. So, need of the family planning was to efficiently utilize the minimum resources which were already available with us. The need of family planning program, in the words of Nehru, we can't solve the population problem, but without it, you can't solve any of the other problem. We can't solve the problem of population, but without it, we can't solve the problem in other arena. So, population was a concern. Population was the concern. At the same time, there we have seen overpopulation, poverty, there, socio-economic development was the problem. In that context, we have launched the family planning. And when population was there, population was living under unhealthy condition. Quality of life was not there. And that's why we have launched the
फैमिली प्लानिंग। अब मैं तुम्हें सिंपल बोलूं, व्हाट वाज द नीड, क्या इस फिलोसॉफी से नीड ऑटोमेटिक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? बिकॉज हमारा जो पढ़ने का, रीडिंग का दैट मेथड विच इज दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। वंस दैट इंप्रूव हो जाएगा, राइटिंग में भी क्या हो दिखेगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर राइटिंग। क्लियर? और इसमें मैंने क्या किया, कनेक्ट, सब एनवायरमेंट में कनेक्ट हो रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिनेरियो कनेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक कनेक्ट हो रहा है, गवर्नेंस क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, सिचुएशन हमारी उस समय। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग, सो व्हेनेवर अ टॉपिक इज देयर, ये जनरलाइज्ड है। फिर व्हेनेवर अ टॉपिक जो तुम पढ़ भी चुके हो, जैसे मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा, अब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं, तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन करना है, व्हाई दिस टॉपिक, व्हाई एम आई रीडिंग, व्हाट इज द फिलोसॉफी behind this topic. If I'm reading federalism, why am I reading? What is the philosophy of this topic? Once this clarity is there, ऑटोमेटिक जो चीजें तुम ढूंढते हो ना कि नोट्स में मेरा ये लिखा होना चाहिए, नोट्स में ये मेरा लिखा, वो चीजें ऑटोमेटिक क्या होगी, ड्राइव हो। बिकॉज इन आंसर राइटिंग अभी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन हैज बीन गिवन, आई डोंट नो, यही प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है तो मुझे अभी शुरुआत में क्या करना है, जो मेरी हैबिट है, जहां मैं कंफर्टेबल हूं, आई हैव टू एक्सप्लॉइट दैट। मीन्स आई हैव अ कंटेंट, आई नो द कंटेंट, आई विल चेंज माई रीडिंग हैबिट, आई विल रीड दिस फर्स्ट, देन ऑटोमेटिकली आई विल थिंक यार क्या लिखा होगा। चलो शुरुआत में एक पॉइंट आएगा, कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, भले 5 ना आए, एक तो आएगा ना। तो अभी क्या है, आज पढ़ते हैं, कल याद ही नहीं है, वो चीजें क्या होगी, ओवरकम। क्लियर? वाई पार्ट इज क्लियर? बिकॉज देने को तो मैंने भी तुम्हें जब 1 पेजर नोट्स दिया है, तो मैंने जब तुम्हें 1 पेजर नोट्स दिया है, उसमें मैंने भी तो वही दिया है जो मार्केट में चल रहा है। बिकॉज उन चीजों को मैं मतलब समझा सकता हूं, कॉपी पर तो मेरा वही रहेगा ना। तो 1 पेजर नोट्स काम के नहीं है, 1 पेजर नोट्स के पीछे की क्या है, थिंकिंग काम की। तुम्हें जो भी नोट्स होंगे वो इसी तरह के। तो पॉपुलेशन इफ यू गो फैक्ट शीट, इंडिया अराउंड 1.5 to 1.7 बिलियन, जो भी डाटा है, अराउंड 2030 इट विल सरपास द चाइना। 18% is world population on the 2.3% the land area which is there with India. We produce one Australia every year. बट ये सरकाजम क्या है, एग्जाम में यूज होंगे तो मैं कुछ को दे दूंगा। देन इन इंडिया इफ यू सी 19% इज पॉपुलेशन अबव 60, 41% बिलो 20, 50% इन 20 to 59। तो ये क्या फैक्ट शीट कलेक्ट करनी होती। अब मैं एक क्लास एक बार और लूंगा कि वैल्यू एडिशन, बिकॉज वैल्यू एडिशन क्या होता है उसके लिए पहले सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक ए डेकोरेशन, इट इज जस्ट लाइक ए डेकोरेशन। नाउ हियर वी आर रीडिंग फ्रॉम, इसको छोड़ो अभी, वी हैव सीन थिंकिंग से ही। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने फिलोसॉफी समझा दी है, यू टेल मी द नीड, जरूरत क्यों थी, why was the need, first overpopulation or resource scarcity, then quality of life, to improve the quality of life. Human development problem, then in human development, health, education, food security, that's why we brought the concept of family planning. So through this, if I give you the definition of 1952 program, 19 according to 1952 document, the family program planning program is reducing birth rate to stabilize the population at a level consistent with the national economic requirement. Means 1952 thinking is saying I have to reduce the birth rate,
बर्थ रेट अप टू व्हाट लेवल? टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट जितनी हो रही है वो डेथ रेट को क्या करते थे? इक्विलिएंट, सो दैट इज इन हार्मोनी विथ national economic requirement. Because now visualize this, China has launched one child policy, now it has relaxed because that one child policy right now not in sync with national economic requirement. Getting my point? So family planning according to 1952 was all about birth control and to stabilize the population. To stabilize the population. But this policy has seen evolution over the period of time. When I am visualizing only this definition, my complete focus will be control, resource. But once I will think that this policy has evolved over the period of time, मेरे need के point पे क्या हो जाएंगे? वास्ट हो जाएंगे। तो मैं अब आ रहा हूं why, now I am coming how we have seen the evolution of family planning program. Evolution, how it has evolved over the period of time. In answer writing, when you will generate the point, means you have to generate the content. One aspect which will help you is timeline approach. Evolution approach. For example, if I am saying, tell me the problem of woman. बताओ 20 points for problem of woman. अब सिंपल सोच रहे हो? सोचो ये, before she is coming in the world, fetus, then when she is young, a child, then adult, then old. चार पॉइंट यही निकल जाएंगे ना, हो गया पॉइंट। ये आएंगे नहीं, तुम्हारे पास है ऑलरेडी, तुम्हें निकालना है, और यही चीजें हमें क्या करनी? कंसोलिडेट करनी। दैट इज कॉल्ड टाइमलाइन अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच। तो फैमिली प्लानिंग, 1952, one era is there. 1960, the one era. 1970 is the one era, 70 to 75. Then 75 onwards, other era is there. ये डायग्राम है, मैं इसी को सिंपल तुम्हें समझाता हूं। The Indian family planning, which we have launched in 1952, but India got independence in 1947. 1947 to 1952, or you can say till 1960, era is of neutrality in family planning program. Means state was neutral. It has left family planning on the shoulders of population, and that was based on Gandhian philosophy of voluntarily reducing the birth rate or having a gap in population. But in 1952, Government of India has launched in the first time in the world family planning program. But that was also based on the Gandhian approach. State was not forcing. So this era before 1952 was the era of neutrality. Era of neutral. 1952 onwards, state is intervening, but still that is voluntary. And they have focused on clinic approach. In the clinic approach, in the hospitals, they have set up the clinic, so that if you want sterilization, you can go and sterilization can be done. They focused on research. They focused on the demographic studies. But this clinic were mainly in urban area. They were mainly in urban area, not in rural area. This approach
approach has got converted into the extension approach. In extension approach, मैं थोड़ा चुप होता हूं, ये extension वर्ड तुम कहां पढ़ते हो? इकोनॉमी में कहां पढ़ते हो? एग्रीकल्चर में? IARA ने रिसर्च किया, पूछा इसमें एक्सटेंशन का मतलब क्या है? वहां से वो चीजें कहीं और क्या है, फैलें, तो कैंप ऑर्गेनाइज वगैरह करें, वही है. तो हियर इन एक्सटेंशन अप्रोच दे हैव एक्सटेंडेड in the rural area. Mobile van is there that is going into the rural area. They are generating the awareness. They are doing the digitalization. But target has been given. So much of digitalization should be. This has changed to the camp approach. A wider, where thinking is there, you have to do this. So number of targets are there. Mass camps are being organized. And this is in the era of your 1970s onwards. And this approach, both these, or you can say all these three, were based on the thinking of, ये words लिख लेना, HITS. Based on the HITS. H means health department oriented. Means family planning was health department oriented. Means specialization. Right now, if we think about the family planning, we don't just think about the birth. We think family planning as a holistic concept. तुम्हें अगर स्किलिंग दी जा रही है, वो भी क्या है? प्लानिंग का पार्ट है. I, incentive based. Incentive to the health worker. You will do so much of sterilization, so much of incentive. If you are coming for the sterilization, you will be given incentive. T, target oriented. T, target oriented. T, time bound. Time bound. S, sterilization. As sterilization. As sterilization. So these were based on sterilization. Now HITS approach. HITS approach. And this was the forced way of controlling the population. And this thinking was forcefully imposed on the population in the emergency era, where at the mass level, vasectomy and tubectomies, but mainly vasectomy. And people has revolted, and that's why you see 1977. So 1977 was the divide in our family planning program. Before 1977, thinking was control. Thinking was control. After 1977, we have moved towards welfare approach. That's why in 1976, which program you have read, which was launched? Integrated Child Development Program, ICDP. अब देखो कनेक्ट हो रहा है ना चीजें. आंसर राइटिंग में यही सीखना है. एक चीज सीखी है, बहुत सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कनेक्ट. कहीं नोट्स में तुम्हें नहीं मिलेगी वो चीजों को. तुम्हें क्या करना है? विजुलाइज करना है. कई बार टॉपर का आंसर पढ़ते हो ना, इसने लिख कैसे लिया, ये इसको पॉइंट कैसे याद आ गया, क्योंकि वो थिंकिंग में चल रहा है. एंड व्हेन दिस वेलफेयर अप्रोच, दैट्स व्हाई आशा वर्कर्स, बट इन दिस वेलफेयर अप्रोच थिंकिंग वाज ऑफ माई बाप सरकार. माई बाप सरकार मीन्स government is doing, people can't question. People can't question. This has changed in 1994 at the world level. Which conference? Cairo Conference, International Conference on Population and Development, ICPD. 1994 ICPD conference, Cairo Conference.
and that has changed everything in family planning. And from welfare approach to we have moved towards right based approach. Where we have moved? Right based approach. Right based approach. Now, this timeline I can also say era of neutrality. मैं अपना अलग से भी डायग्राम बना सकता हूं ना. Then era of neutrality to control to welfare to right based approach. In the right based approach, people can ask for their right. या तो ये डायग्राम बनाओ या ये डायग्राम बनाने को नहीं पूछेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा वहां एग्जाम में. अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये कभी पूछेंगे नहीं, और जब तुम देखते हो पूछता नहीं है, तुम्हारी आर्ट है कैसे लेके आओ, योर आर्ट. और तुम्हें सिखाना भी पॉइंट डायग्राम बनाते कैसे हैं, क्योंकि डायग्राम किसी के रटो के भी याद नहीं आएंगे, वहां पर ऑन द स्पॉट बनाना होगा. मैं फास्ट हूं तो बोल देना, स्लो हो जाऊंगा मैं. जैसे मेरी आदत फास्ट की है तो स्लो हो जाऊंगा, तो अभी मैं स्लो टोक देना. ठीक है. न्यूट्रलिटी टू कंट्रोल टू वेलफेयर टू right based approach. So right based approach in this context, in year 2000 we have launched national population policy year 2000. इसका कंटेंट में मैंने अलग से भी दिया है तुम्हें नोट्स में, इसको बाद में पढ़ना है, क्वेश्चन हो सकता है. क्वेश्चन कैन बी देयर ऑन नेशनल पॉपुलेशन. नाउ इफ यू सी द राइट बेस्ड अप्रोच, दैट्स व्हाई इन ईयर 2002 व्हाट हैपेंड? राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. देन 2009 RTE, Right to Education Act. Then in 2002 we have launched National Health Policy. In 2005 population and for their right we have launched NREGA. Then in 2013 Skill Development Program. In 2015 at the world level Sustainable Development Program. And for that Government of India has taken the measures. This one, तो मिशन परिवार विकास, पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंडोम्स डिस्ट्रीब्यूशन. सोचते रहो, लिखना नहीं है अभी, सोचते रहो बस, क्योंकि थिंकिंग पे ध्यान दो, ताकि अब तुम्हें न्यूज पेपर जब दिखेगा ना उसको तुम पिकअप करोगे फिर, क्योंकि चीजें बहुत हो सकती है, ये जगह बहुत है वो. तुम बस कनेक्ट, क्योंकि क्लास में क्या सीखना? कनेक्ट. तुम्हें ये नहीं सीखना मेरे से अभी कंटेंट क्या होगा. कंटेंट में तुम्हें बहुत कुछ दे दूंगा, तुम कंटेंट के लिए मेरे पास आए भी नहीं हो, तुम्हारे पास वो मैं दूंगा, बट कंटेंट जो है, जो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे क्या आना चाहिए? याद आना चाहिए उस समय जो मेरे पास है, क्योंकि कम हो सकता है, वो याद आना चाहिए ना. When this right base, that's why Government of India has focused on not on the numbers but on the population itself. That's why Matritva Vikas Yojana, that's why food security, that's why scheme Vaya Vandana Yojana for the elderly, that's why government giving incentive when deliveries are there in the hospitals, that's why various kind of scheme to reduce your IMR, to reduce your MMR, ASHA workers and their skilling, all after this. So when you see this in the family planning, the thinking of family planning is also changed. Here they were focused on population as a number, population as a burden. Right now they have focused here population in a comprehensive way, all around development of population. So when this is there, focusing on child, mother, even elder, even the population, that's why we are focusing on skilling, education, health. That's why we have launched Ayushman Bharat. Here we are facilitating
Here they have a right to question. They have a right to question. On this path, we are going towards the family planning program. This will not ask this, but this will help. But this will help. For the point. अब मैं अगर तुम्हें इतना भी दे दूं, क्या करोगे? रट्टा ही तो मारोगे, रट्टा ही मारोगे ना, जबकि करना है क्या हमें? उसकी थिंकिंग डेवलप कर। क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट उलझ कहां गया? एक चंगुल आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, एक जगह से पीछा छूट भी गया तो कहां दूसरा शगुफा कौन सा आ रहा है? मेंटोरशिप का आ रहा है जो उसको कैच करेगा, तो लगा वहां डाइवर्ट हो गया। उसमें नहीं पढ़ना है तुम्हें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ही बहुत क्या करना है? फोकस करना है, ये ऑटोमेटिक आएगा। क्लियर? अब मैं तुमसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आसपास देखना है। देन दिस हैज बीन देयर, सो विद दिस व्हाट वी हैव अचीव्ड। तुम क्वेश्चन पूछोगे सर आपको बताना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें मुझे बताना है। अगर दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वी हैव लॉन्च्ड फ्रॉम 1950 टिल डेट, सो व्हाट आर द अचीवमेंट फॉर अस? First, we have been able to reduce IMR, MMR. Then we have given the confidence to the population that their child will not die. Because पहले क्या होता था, लोग बोलते हैं कि in the sun meta preference people used to produce cricket team, but one other factor was जो लोग पैदा होंगे हेल्थ की फैसिलिटी नहीं, उम्र से आएगा। तो आज की डेट में क्या है, कपल को कॉन्फिडेंस क्या है, एक भी होगा तो वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो अगर ये कॉन्फिडेंस है, एमआर ज्यादा है, तो बच्चे क्या होंगे? ज्यादा पैदा होंगे, कम? ज्यादा। तो इसकी वजह से फैमिली प्लानिंग हैज गिवन कॉन्फिडेंस टू दी कपल्स और नॉट, कॉन्फिडेंस टू दी पॉपुलेशन। हो गया, पॉइंट हो गया। अब इस तरह की चीजें तुम्हें क्या करनी है? ड्राइव करनी। नोट्स में मिल जाएगी पर एक्स में मिल जाएगी, वाई में नहीं मिलेगी। पर मुझे चीजों का क्या करना है? सोच। और ये मेरा पॉइंट क्या होगा? अलग होगा। नाउ आई एम नॉट राइटिंग IMR, मैं लिखूंगा IMR, बट विथ IMR आई विल आल्सो से बाय रिड्यूसिंग द IMR they have given confidence to the population that their child will survive. समझ में आ रहा? So it confidence building measure into the population, and indirectly it is contributing in reducing the population. In reducing the population. कल मैं जब population बताऊंगा तो कुछ डाटाज दूंगा, वो डाटा तुम्हें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को अलग एंगल से देखने में। When this is there, we have been able to reduce our crude birth rate. अब डाटा हम कलेक्ट करेंगे, डाटा दिया मैंने, बट कम से कम तुम्हें फिलोसॉफी से पॉइंट ऑटोमेटिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कुछ मैं पढ़ाऊंगा तो कंटेंट जब पढ़ाऊंगा तो क्या बोलूंगा? देखो ये देख लो कि अचीवमेंट क्या रहे हैं, कि इसकी वजह से CDR कम हुआ, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ, CDR कम हुआ, MR कम हुआ, MMR। तुम्हें इससे मतलब थोड़ी है, तुम पढ़ भी लोगे, रट्टा मार लोगे, और तुम्हें मतलब किससे है? हाउ आई एम एबल टू थिंक। समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं कर रहा हूं ना, माइंड में प्रेशर तो नहीं पड़ रहा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ, अभी तक हमने क्या किया? व्हाई दिस टॉपिक आई एम रीडिंग, थ्रू दिस व्हाई we have seen the need, then I have taught you the evolution. Through evolution you have told me the benefit. Now tell me the problem. दो तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, what is the problem in family planning? My second question, why family planning as a failure? What is the difference? First, family planning and the problem. Second, why it is a failure? What is the difference? Difference between these two words. Because आंसर राइटिंग में कई बार क्या करते हैं, इतने माइन्यूट से वर्ड्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। पूछा ये लिखने ही लगते हैं, या जब ये लिखते हैं तो एक पॉइंट इसका लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट इसका आ जाता है।
in the common language we differentiate or not, but in answer writing we do not differentiate. और वही जो है फेलियर का रीजन भी रहता है, जो लिखते समय नजर नहीं आता है, बाद में जब देखते हो, बाद में जब कॉपी चेक भी होती है ना, वो बता के नहीं था, बोलता सही है बट ये गलत कर सकते थे, ये नहीं बताएगा क्यों सोचा मैंने भी। डिफरेंस है कि नहीं? बट पॉइंट्स जो है दोनों के सेम है या अलग होंगे? सेम होंगे, लिखने का तरीका अलग होगा। समझ में आ रहा है? ये चीजें ध्यान देनी। तो माय क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बोल नहीं रहे हैं तो चैट में कम से कम बता देना व्हाट इज द प्रॉब्लम। 1 मिनट का टाइम है, सोचो बताओ। 1 मिनट। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फैमिली प्लानिंग? कंटेंट नहीं देखना है, खुद सोचना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फैमिली प्लानिंग? जनरल सोचना है तुम्हें, अपने आप को भी सोचना है, अपने भाई को भी सोचना है, अपने फैमिली को भी सोचना है। When family planning is there, think other topics वो जो मैंने बताया नहीं, जो यूज होते हैं वो, whether they are available or not. In family planning, who should be the target? Whether those people are targets or not. Think. Done? करें? बताते जाओ, मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब एक प्रॉब्लम बताते हैं बस। टू द पॉइंट, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के कुछ कई बार क्या होगा, पॉइंट्स आएंगे, तो पॉइंट्स की प्रायोरिटी भी हमें तय करनी होगी। इन द फैमिली प्लानिंग आवर राइट नाउ फोकस कंट्रोलिंग नंबर। So controlling the number, so in that context thing, in family planning, when I'm going for the family planning, I have to see about the birth rate, how I am able to do. Now to do this, I'm asking for spacing between the child, I'm asking to use artificial means like pills, condoms, etc. For this family planning, I'm launching at the all India level. Now in this family planning, my focus is on male, female. Now in this male, female, I am targeting particular one. Who am I targeting? Whether those are target or not. यहां सोचो, अब यहां से पॉइंट आएगा, एकदम जीरो है। कई बार चीजें मिस हो गई है, वो एकदम क्या है, जीरो है। जैसे इन फैमिली प्लानिंग, yes I am saying I have done good, but let's say you have IMR data. India has been
लेट्स से मैं फैक्चुअल दे रहा हूं, पहले जो है 45 हुआ करता था, अब मैंने 37 कर दिया। एक सेंस में क्या कर सकते, गुड है। दूसरे सेंस में, इफ आई कैन ब्रिंग द डाटा ऑफ अदर कंट्री, दे हैव डन सो मच बट इंडिया हैवंट बीन एबल टू डू, क्रिटिसाइज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? सेम डाटा को पॉजिटिव, सेम डाटा को क्या नेगेटिव। थिंकिंग सीखनी है, और नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं है तो मैं डाटा नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये अब डाटा आएंगे, सेंसस जब होगा तो डाटा आएंगे, तो डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब मैं इसमें इस पे जाता हूं। इन दिस आर्टिफिशियल मेजर्स, these artificial measures are accessible or not to the all population? No. Now, in this context, first problem is purchasing power, and where they are available in the free mode or whatever, is there any access or are they available? अब दूसरी चीज यहां पर, some things are available at the X, still I am not going. Why? Social stigma. So family planning program has not been able to attack this social stigma part. It has not been able to generate the awareness. देखो इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन में है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, आ नहीं रही है, उसको मुझे कहां लाना है, और यहां से कहां लाना है, यहां से कहां पर, पेपर पे लेके। समझ में आ रहा है? मैं क्योंकि बोलने को मैं क्या दे सकता था तुम्हें, पॉइंट बोल सकता था कि नहीं बोल सकता था, बोल सकता था, फिर क्या होता, तुम रट्टा मारते। बट मुझे इसी थिंकिंग को चेंज कहां करवाना है, लिखते समय भी मेरे पास कंटेंट है, मुझे उसको लेके आना है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसको फिर पॉइंट के फॉर्म में समझा दूंगा, अभी मैं रॉ फॉर्म में जा रहा हूं, जो भी मेरे पास पॉइंट आ रहे हैं, जो तुम्हारे पास पॉइंट है उसको मुझे निकलवाना है, ठीक है? और गुड, और बताओ। हाँ, the family planning has always focused on the control, and still the focus is no control, not all around development. That's why problem of human development. That's why, yes, good, all over India, but success is not in, अब नॉर्थ बेल्ट में नाम क्या लोगे, बीमारू स्टेट्स या क्या? आज की डेट में बीमारू स्टेट को क्या बोलते हैं? यूज करना है, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ स्टेट। बिकॉज बीमारू क्या हो जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज बीन सक्सेस वेयर, साउथ, नॉट इन दी। तो अगर मैं तुम्हें अब हिंट दे रहा हूं, इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्रॉब्लम इज दिस, तो डिवाइड नॉर्थ साउथ, अदर डिवाइड, नाउ एम्पावर्ड एक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट, वर्ड बोला था, वो बोला था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ स्टेट। One divide is this, other divide you can think of in family planning. How? Pubectomy is the focus, not vasectomy. Now, if I only 5,000 vasectomy, but more than 1 lakh pubectomy. So, gender divide is there, gender biasness is there in family planning. समझ में आया? तो gender then we have a class divide. Class divide in the sense of poor, urban. Class divide. I can think of rural urban divide,
मोस्ट फैसिलिटीज आर लोकेटेड इन अर्बन एरिया. इफ यू हैव विजुअलाइज्ड, अगर तुम देखो हॉस्पिटल्स जहां पर डिलीवरी होती है कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. समटाइम्स दे आर नॉट देयर इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, दे आर इन द रीजनल हेडक्वार्टर. एंड इफ आई एम extending my visualization of family planning, now I'm not concerned about the just birth, just control. I'm focusing on all around. वहां बर्थ भी आएगा, एमएमआर को भी कम करना है, एमएमआर को भी कम करना है, और हेल्थ फैसिलिटीज भी होनी है. सारी का है एक वर्ड से तो लेके आनी. ये टॉपिक नहीं पढ़ना है तुम्हें, मैं फिर क्या बोल रहा हूं. इस तरह है एक वर्ड से क्या? थिंकिंग. व्हाट इज द पॉइंट? Now, इसी में when I've told you expels and etc, वहां क्या बोल सकता हूं? Accessibility is the problem. Accessibility of artificial intelligence. पॉइंट. अब इससे सोचो, हिंट देख. मैं तुम्हें कई बार क्या करूंगा? हिंट दूंगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई हैव टू अचीव दिस. अब मैंने तुम्हें यहां पूरा सोचने को बोल दिया, क्या होगा? कर पाओगे? तो मैं इधर लेवल पे ले आऊंगा तुम्हें. अब तुम्हें इस लेवल से कहां जाना है? यहां. तो तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा? मैंने इसलिए क्या बोला था? आई हैव टू अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ केजन. अब मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूं. इन फैमिली प्लानिंग बर्डन इज ऑन पीपल हु आर इन दिस एज ग्रुप. What is the problem here? So where our family planning program is targeting? सोचो. अब इसी में सोचो ना. अडल्ट तो बोल रहे हो. Our family planning program, because of social stigma, only targeting those who are, but they should target when they are about to marry also. Because when this will be there, they will be better able to take the decision. And this is not happening. Why? Because on the name of cultural norms, our policy makers, or because of various hurdles, we are not able to target those. समझ में आया? मैंने क्या बोला? पॉइंट समझ में आया? ये फील करते हैं कि नहीं करते हैं? पढ़ेंगे तभी क्यों लाएं? मैं सोच तो सकता हूं ना. इसलिए देखो, कई बार अनवांटेड डिलीवरी होती है, कपल को चाहिए ही नहीं बच्चा, फिर भी क्या है? हो जा रहा है. बिकॉज कपल्स को जानकारी ही नहीं है बर्थ की स्पेसिंग कैसे करनी है, टाइम कैसे लेके आना. तो यहां पर टारगेट कौन होना चाहिए? अडल्ट. बिफोर मैरिज. बट बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा, दैट अवेयरनेस इज. इस तरह के पॉइंट जब लिखेंगे ना, मार्क्स मिलेंगे. और ये बुक्स या रिसर्च में नहीं है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है. एक पॉइंट ऐसा मार्क्स फेच करवा देगा, बस एक पॉइंट. तो औरों से क्या करेगा? तुम्हें अलग करेगा. मैं इसी में एक थोड़ा अगर एग्जांपल भी दूं तो छोड़ो, थोड़ा आउट ऑफ द बाउंड हो जाएगा. अभी एग्रीकल्चर में आएगा तो बताऊंगा. अभी क्या कंटेक्स्ट फिर पूरा ही अलग चला जाएगा. समझ में आया? अब इसमें देखोगे ना, फीमेल के पास जो डिसीजन मेकिंग पावर वो नहीं है. वो कौन ले रहा है? ले रहा है. तो ये इसकी प्रॉब्लम है या इसका फेलियर है? बताओ. मैंने क्या बोला था? ये हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. अब मुझे इसी पॉइंट को अगर इसमें लिखना है, क्या लिखूंगा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट इवन इनफ अवेयरनेस टू प्रोवाइड चॉइस टू द वुमन. It has not been able to counter the patriarchal mindset. अब मैं क्या लिख दिया? मैंने प्रॉब्लम लिख दी ना. समझ में? थिंकिंग सेम, बट मैंने उसको क्या किया? चेंज किया.
माइन्यूट डिफरेंस आंसर राइटिंग में वही ध्यान देना है। तुमने जो पॉइंट बोला वो उसकी क्या होगा, फेलियर का रीजन होगा। व्हाई इट इज फेलिंग? बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल नॉर्म्स। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज दिस प्रोग्राम हैज नॉट बीन एबल टू टारगेट द पेट्रियार्कल माइंडसेट। समझ में आया? यही छोटी चीजें हैं जिसके कारण प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, यही छोटी चीजें जिसके कारण क्या रुकता है, मेंस रुकता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। बहुत माइन्यूट चीजें हैं ये, और हम इस पे वर्क नहीं करते हैं। क्यों? बुक्स पेज खत्म होते तो डोपामाइन पन्ने खत्म हो गए 50, आज मजा आ गया। और इसमें क्या होता है, पन्ने खत्म नहीं होंगे क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं है ना। और सोचो, बताओ। यस आस्तिक, तुमने लिखा हो कुछ, बताओ, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। स्लो चल रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्या बोला इसने, फेलियर बोला है कि प्रॉब्लम बोली है? तो कंट्रोल तुमने बोल दिया। स्टील व्हेन राइट बेस अप्रोच इज आल्सो देयर, स्टील कंट्रोल इज देयर। अब सोचो, क्या कैंप लगाना गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग के लिए बंद कर दिया है क्या? अभी भी चलते हैं? चलते हैं। तो इसमें कभी सुनते हो छत्तीसगढ़ में रूल लेने में डेथ हो गई, यहाँ क्या लिखोगे, इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टील कैंप अप्रोच, and the camp approach is hygienic unhygienic and still deaths are there, that is a problem. कल परसों बीकानेर में क्या हुआ है, कई बार तुम्हारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज, फेसबुक की स्टोरीज काम आएगी। 3-4 के बीच की डेथ हुई है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है तो कॉन्फिडेंस होगा तभी ना। इफ द हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट देयर, पीपल विल हैव अ कॉन्फिडेंस? नो। And this family planning program, if it has not been able to generate awareness even among the policy makers about the health facilities, वो भी इसका क्या होगा, फेलियर होगा। समझ में आया? अब मैं पॉइंट्स पे आता हूं। बताने को तो मैं क्या कर सकता था, डिस्कस कर सकता था कि प्रॉब्लम क्या है, बट ये नहीं करना। अब यहां से जेंडर इम्बैलेंस इज द प्रॉब्लम, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, then still not able to change the attack the patriarchal mindset. Then the problem is still it has sun meta preference, it has not been able to target the sun meta preference. This is the problem, or sun meta preference, because of this it is failing. Problem क्या लिखने का तरीका होगा, still not able to target the thinking of sun meta preference. कान इधर से लिखो, उधर से। देन स्टिल टारगेट ओरिएंटेड, हिट्स इज स्टिल देयर, लिखना है वहां हिट्स। देन पॉपुलेशन कंट्रोल माइंडसेट वही है, कोएर्सिव मेजर्स आर देयर, कैंप अप्रोच इज देयर। यहाँ लिखते रहो साइड में, अगर है तो वही जो भी लिखोगे फेरवर्क कॉपी में इसी नोट्स में करना कभी कभार। एक्सेसिबिलिटी इज द प्रॉब्लम, कैंप अप्रोच इज स्टिल देयर, कैंप अप्रोच इज स्टिल देयर, divide is still there, divide is still there। ये तो हो गया। अब हमें पढ़ना था कि क्वेश्चन करना है। डिवाइड, कैंप अप्रोच, accessibility is the accessibility of what, artificial measures। अब एक तुम्हारा होमवर्क है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड स्कीम्स, PIB, बस जाकर एक बार देख लेना है। इस पे नाराज तो नहीं होगे ना? आज का जेन जी और यूट्यूब का बच्चा नाराज हो जाता है, टीचर ने बताया ही नहीं है। खाली देखना है, खाली क्या करना है, गो थ्रू, रट्टा नहीं मारना है, बस 1-2 नाम लिख लेने हैं।
पीआईबी, यस खाली पीआईबी डाल देना, एक बार बस खाली आंखों के सामने से गुजार लेना। नहीं, पॉपुलेशन पॉलिसी मैंने दी हुई है, जब कल करेंगे ना उसके बाद ही बोलूंगा मैं। आज हम जनरल कर रहे हैं, मतलब उसके बाद पॉपुलेशन सिस्टमेटिक वे में करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करें हम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्कीम पीआईबी खत्म, ये स्कीम लिखना और पीआईबी पे आ जाएगा, तुम्हें गो थ्रू होना है बस, ताकि आंखों के सामने से निकल जाए। Now this is the question and we will apply the thinking of point generation. What is the demand? Then we will have to see the point, then we have to go to the structure. Now level 1. This question. Demand is clear or not? First country in the world launch family planning program. So I have to examine achievements, and first my heading will be achievement, second heading my will be where is my scope of innovation. In the first statement, whatever I have read, I can bring here. I can bring here the evolution. That is my art. तो मैं एक और आगे लूंगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है बाद में। जैसे यहां पर फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च इंडिया, what was the problem at that time? In that context we have launched this, but this policy has seen the evolution from 15 to this, and it has various achievement and limitation. Okay, बट इस तरह के इंट्रो लिखने में 20 क्वेश्चन में से केवल 20 में से आउट ऑफ 7, 20 आउट ऑफ 20 नहीं कर पाओगे। 13 में बहुत सिंपल आएगा, 7 में ही क्या होगा, अच्छा इंट्रो आएगा, कि नहीं तो पेपर छूटेगा। हमें ये भी तो ध्यान रखना है, ये थोड़ी याद रखना कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 4 या 5 क्वेश्चन अबव एवरेज, फिर 12 जो है क्वेश्चन 12 16 12 13 के अराउंड एवरेज, उसके बाद थोड़ा घटिया भी होगा, काम चल जाएगा और होगा ही होगा वो। क्लियर है, इसमें मेरा कोई डायमेंशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये तो हो जाएगा ना, अचीवमेंट, बर्थ रेट क्या हुई, फर्टिलिटी क्या हुई, डेथ रेट क्या हुई, पॉलिसी जो है कैसे मैच्योर हुई है, ये पॉइंट सही है ना। फिर यहाँ पर कोवर्शन, सेटलमेंट ऑपरेटिंग टारगेट, फ्रेम, बर्डन हो जाएगा ना, पॉइंट तो वही है ना। 1 मिनट का टाइम है। व्हाट इज द डिमांड, और मैं सिखाऊंगा अभी डिमांड कैसे निकालते हैं। यू हैव 2 मिनट्स, जस्ट फाइंड आउट कि क्वेश्चन जो है ये पूछ क्या रहा है। व्हाट इज द डिमांड, अंडरलाइन द क्वेश्चन, keywords, then find out the demand. Underline the question, keywords. When a question is there, first underline the keywords. Then relate the keywords.
टाइम अप। देखो मैं इसको सिखाता हूं, ये आगे चीजें कंसोलिडेट करनी है। इन आंसर राइटिंग व्हेन अ क्वेश्चन इज देयर, फर्स्ट पार्ट इज डिमांड, यू हैव टू फाइंड आउट द डिमांड। टू फाइंड आउट द डिमांड, first thinking is underline the and make the relation between the keywords। ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही तुम क्वेश्चन की डेप्थ में जा पाओगे। एंड टू फाइंड आउट एंड टू डग अप मोर, फायर WH क्वेश्चन। once that clarity is there, you will open more dimension. You will go not just in direct demand but in the indirect demand as well, not just explicit but hidden demand as well। जैसे यहां पर the question keywords are first of government, first of a government where, first of the government in population planning। Next keyword is planning the population। Now this planning the population is related to what? Is it related to? This is related to. Second keyword is this keyword is also related to this। कई बार क्या होगा जब समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, कुछ मत करो, क्वेश्चन को अपने ऊपर फायर करो। इन यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन माय फोकस हैज बीन planning the content, not plan for the content। planning the content means कंटेंट क्या चाहिए, हिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, ज्योग्राफी के लिए क्या चाहिए, वर्किंग ऑन माई दैट कंटेंट, जो वो कंटेंट है वो कैसे मैं यूटिलाइज करूं। तो कई बार जब क्वेश्चन तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, फ्रेम दैट क्वेश्चन कि वो तुम्हें रिलेट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? तुम्हें अभी टाइम लगेगा, बाद में बहुत फास्ट होने लगेगा ये, वेर यू आर रिलेटेबल, बिकॉज उस सिनेरियो में तुम उस तरह तुम्हारा माइंड क्या करेगा, सोचेगा। वही थिंकिंग कहां लेके आनी है, यहां। समझ में आया? एक एस्पेक्ट होगा पॉइंट बनाने का भी और क्वेश्चन को समझने का। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया? तो इन पॉपुलेशन प्लानिंग फोकस हैज बीन प्लानिंग द पॉपुलेशन। प्लानिंग द पॉपुलेशन मींस यहां पर तुमने कहा इकट्ठा करना है यूपीएससी कंटेक्स्ट में, यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लानिंग द पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लानिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को प्लान करना है। प्लानिंग फॉर द पॉपुलेशन, होलिस्टिक। अब देखो इसके और अभी मैं डिमांड पॉइंट जनरेट नहीं करूंगा, अब मैं और कुरे दूंगा। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का, अब मैं इसको एक्स से रिप्लेस, गवर्नमेंट का फोकस एक्स पर रहा है, वाई पर नहीं। अब मेरा मीनिंग क्या हो सकता है? क्या गवर्नमेंट का फोकस केवल एक्स पर रहा है, या एक्स पर नहीं वाई पर भी रहा है? वाई पर है तो क्या केवल वाई है? वाई में भी एक्स पर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? नहीं तो क्या करेंगे, हेडिंग ए बनाएंगे, हेडिंग ए बनाएंगे, सोच लेंगे आंसर हो गया। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या करने, फायर करने, क्यों? उसी हिसाब से तुम्हारा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज अगर मैं समझाऊंगा तुम क्या सोचोगे, देखो सर ये कर रहे हैं, आंसर तो यही होगा। और तुम्हें क्या सीखना है, तुम कैसे, हाउ यू विल थिंक। तो नहीं आ रहा है तो उसको क्या करो, जो है एनोनिमस, जो है एनोनिमस से रिप्लेस कर दो।
एक्स और वाई। अदरवाइज तुम्हें कंटेंट का दर्श होता है, कंटेंट तो आता ही नहीं है। कंटेंट नहीं, डे टू डे रूटीन में हाउ यू स्पीक, हाउ यू ऑब्जर्व, सेम थिंकिंग यू हैव टू अप्लाई हियर। And in day to observation, day to day, how you think, the same thinking you have to apply here. But यहाँ context क्या हो जाएगा फिर, जो टॉपिक का। अभी हमारा फोकस कहाँ रहता है, कंटेंट पढ़ा ही नहीं है। आधे से ज्यादा आंसर हो जाएंगे अगर तुम्हें डे टू डे लैंग्वेज में उसको लेके आ गए हो। अब यहां पर भी देखो, अगर इसी को खोल दोगे बहुत कुछ हो जाए। डिमांड अगर मैं कहूं इन पॉपुलेशन, बिकॉज इस डिमांड में क्या है, इसको मीनिंग डालना है, इसका मीनिंग खोजना है। तो कई बार क्या होगा, इसका मीनिंग क्लियर होगा, इनका जिस तरह तुम रिलेशन बनाओगे आंसर वहां होगा। एंड इन डिमांड व्हाई आई एम फोकसिंग हियर दिस टाइप ऑफ डायग्राम, देखते तुम्हारे पास पॉइंट आने लगेंगे। कई बार लोगों को क्या होता है, हेडिंग क्लियर नहीं होती, हेडिंग आने लगेगी। यू कैन ब्रेक द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन इजी क्वेश्चन, जबकि इजी क्वेश्चन का आंसर आता है ना, बस कॉम्प्लेक्स को किसमें ब्रेक करना है। और ये अभी कॉपी में करना है, बाद में क्या करना है, कॉपी में नहीं, कहां होना चाहिए, माइंड। एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ा, यस ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहां पर चल जाओ। ठीक है, कीवर्ड, कीवर्ड से क्या, अब आज तो नहीं आया क्वेश्चन इस तरह का, पर बाद में बताऊंगा। कीवर्ड आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स द टॉपिक विच हैज बीन गिवन, आंसर विल नॉट कम फ्रॉम द प्राइमरी, प्राइमरी विल गिव यू कंटेक्स्ट। secondary keyword which are relation, which connects, they will give you the answer. तो सारे क्वेश्चन जो है ना एथिक्स में, सोशल जस्टिस में, जो तुम्हें सबसे टफ सब्जेक्ट लगते हैं, वहां पर सबके आंसर इसी तरह आएंगे। अब मैं वापस ब्रेक करूं, डिमांड, कीवर्ड क्लियर हुआ। तो पॉपुलेशन पॉलिसी अगर मैं सोचूंगा, इन पॉपुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट फोकस इज ऑन द कंट्रोल, हाउ यू कैन से, क्वेश्चन के डिमांड लगाने के लिए मैं यह क्या लगा सकता हूं, वर्ड, हाउ यू कैन से। बट इट, अब देखो, इफ फोकस इज देयर दैट मींस ये तो नहीं होगा। अब तुम इसमें क्या लिख सकते हो, यस फोकस हैज बीन देयर। अब कंटेंट काम आएगा इस एरा तक, नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग हियर, बट स्टिल द फोकस इज ऑन biases are तुम्हारा thinking, still biases are there. So these kind of way forward can be। अब यहां सोचा है, अब कंटेंट सोचो, प्लानिंग द पॉपुलेशन। अब तुम कंटेंट निकालो, वहां से क्या क्या पॉइंट हिट कर सकते हो, कंट्रोल, कैंप अप्रोच, हिट्स अप्रोच, स्टेलाइजेशन हो सकता है। Not here, because planning the population, wider concept, health, education, skill, jobs, employment, this has not been focused, but this has focus। अब यहां पर क्या सोचोगे, तुम्हारे पास कंटेंट क्या है, this focus has changed till from 1977 onwards, after year 2000। that's why अब इसके लिए क्या क्या सोच सकते हो, पॉइंट क्या क्या सोच सकते हो, हेल्थ पॉलिसी, स्कीम्स, एजुकेशन पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इसके लिए क्या सोच सकते हो, लाइफ मिशन, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एसडीजीज। क्योंकि अदरवाइज ओपन नहीं सोचा, कहां सोचो, तेरे टीचर ने बताया ही नहीं, अमित सर ने बताया ही नहीं, मैं क्या सोचूंगा। बट व्हेन यू विल थिंक ओपन, आएंगे कि नहीं आएंगे पॉइंट्स, और वो इनोवेशन होगा कि नहीं होगा। अभी पॉइंट्स आ रहे हैं, कई बार क्या करें, पॉइंट्स तुम्हारे जितने अच्छे होंगे ना, वो पॉइंट्स तुम्हारे पास कई बार डिमांड को रिफाइन करेगा। और ये चीजें एक के बाद एक नहीं होगी, कई बार क्या मिक्स चलेगी। अब मैं एक के बाद एक तुम्हें सिखाऊंगा, बाद में क्या होगा, ये सब डिमांड, पॉइंट, स्ट्रक्चर क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें डिमांड, पॉइंट और स्ट्रक्चर को क्या बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। गेटिंग द पॉइंट। अब मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, मतलब मेरा आंसर का फ्लो कैसे होगा, इंट्रो,
So in intro, I can say government focuses on the population, but in population, focus has been planning the population, not plan for the population. This can be explained as A, planning the population how. But this is still not true. Connecting words. Government is focusing on plan for the population. But still a mindset is there. Past biases are there. So in this context, following extra measures can be done for what? B for A. और आंसर का पेन रुकेगा. ये सारी चीजें कितने सेकंड में होनी चाहिए? 7 सेकंड में कहाँ होनी चाहिए? अब ये है तो पेन नहीं रुकेगा. आज तो नहीं लिखवाऊंगा, अगली बार कई बार मैं स्ट्रक्चर बना के तुम्हें उसी समय बोलूंगा लिखो, ताकि इसका बेनिफिट पता होगा ना. पेन नहीं रुक रहा है और जरूरी नहीं कि एक स्ट्रक्चर होगा, और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं. या कई लोग ऐसे लिख सकते हैं. अब यहीं पर कई लोग क्या कर सकते हैं? In the intro, they can go for the family planning evolution, and there they can show, they can explain the control. Yes, they can go, and they can later on here elaborate. Then can say 1 is not complete true, 2 is also there. 2 matlab in this context. What other way forward can be? This is geography optional question 2015. But question can be there. Question can be there in. समझ में आया? मैंने इसको लेवल 2 में क्यों रखा? डिमांड फाइंड आउट करना क्या था? टफ था. अब मैं इसी को मैं इस तरह का मेजर्स नहीं अपनाऊंगा कि मैं आया, मैं क्वेश्चन दिया और मैं क्या बोलने लग गया आंसर है क्या हो. क्या तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए ना. बट अब तुम्हें आ जाएगा प्लानिंग द पॉपुलेशन का मतलब पता लग गया. ये तुमने बताया ना. अब तुम्हारा कंटेंट है, अलग कंटेंट है, वो सेम कंटेंट आ रहा है, सेम आ रहा है ना. लैंग्वेज को क्या कर रहे हो? चेंज. प्लानिंग नंबर फर्स्ट, कंट्रोल माइंडसेट, टारगेट ओरिएंटेड, कैंप और कैफेटेरिया, कोर्स विजुअलाइजेशन. व्हाट इज कैफेटेरिया अप्रोच? कैफेटेरिया में जाके तुम कुछ भी खा सकते हो ना, ला काटे, वैसे कैफेटेरिया. तो कैफेटेरिया में क्या रिलैक्सेशन है कि कंट्रोल है? रिलैक्सेशन. कब आएगा ये? 77 के बाद. देन कोएर्सिव मेजर, डेमोग्राफिक एंजाइटी. वर्ड अच्छा है. पीपल टारगेटेड एज ए प्रॉब्लम. यहां पर पीपल फर्स्ट, वेलफेयर. इन द बजट वी हैव अलोकेटेड सम मनी for the psychological institution, mental health. तो ये कहां आ जाएगा? इधर के इधर. समझ में आया? तो कुछ भी आएगा ना फिर. और कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे? लिखेंगे वहां पर आउट ऑफ 100 1 और 2 लिखो. टेलीमानस फॉर द मेंटल हेल्थ. पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग मेजर, दैट मींस दे हैव कंसर्न फॉर द पॉपुलेशन. आएगा. मुझे यही समझाना है. तुम्हारे पास है, ब्रिंग. वो वे फॉरवर्ड में एज ए सजेशन दोगे. ठीक है. हेल्थ, एजुकेशन लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? यहां लिमिटेड है. तुम ओपन करो अनलिमिटेड. व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन हाउसिंग, when we are focusing on water, when we are focusing on SDG, सारे जितने हैं सब, ये सब आएगा ना. प्लानिंग, वो प्लान फॉर द पॉपुलेशन हो गया ना. मेंटल हेल्थ, इवन यू गो द पार्क, ओपन जिम्स आर देयर. व्हाई? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, NCDs. And when NCDs, government is visualizing, so people should do some physical exercise. कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तुम चीजें क्या है, हमारी आदत क्या हो गई है, बुक्स में क्या लिखा है उसको चेंज करना है. आदत वही हो गई ना. जब इस तरह ओपन होता जाएगा चीजें, कहां दिखेगी तुम्हें? सराउंडिंग.
तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हें सब कुछ आता है, उन चीजों को क्या करना है, निकालना है। अभी तो नहीं, कुछ क्लासेस के बाद तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा, सर ने मुझे आंसर बोल दिया, आंसर तो मुझे भी आता था, मेरे को क्यों नहीं आया। उन चीजों को क्या करना है, चेंज, धीरे धीरे वो होगा, चीजें धीरे धीरे होगी। यू नो द पॉइंट्स, आई नो, उसको तुम्हें क्या करना है, निकालना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा हिंट देना है। मैं बोला ना यहां है तो मुझे थोड़ा सा लेके जाना है, छोड़ देना है। अभी हो क्या रहा है, व्हेन यू आर डूइंग द क्लासेस फ्रॉम द पैसिव मोड, यहां से तुम्हें सीधा यही बता दिया गया है, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड डेवलप ही नहीं हो रहा है, बिकॉज लर्निंग इज नॉट देयर, कंटेंट मगिंग चल रही है। आगे बढ़ू, एक क्वेश्चन ले इसी तरह का, लेवल 3 क्वेश्चन, डिमांड फाइंड आउट करो। जैसे मैंने फाइंड आउट की थी, डिमांड इस तरह फाइंड आउट करो, ऑल द कीवर्ड शुड बी इन रिलेशन, तो में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंडरलाइन द कीवर्ड एंड मेक ए ट्री। Ishita and Astik, all you can speak. कल से मैं this will take time, but you have to do work. कल टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, और तुम भी अगर घर पे रहोगे तो लाइव रखना, क्योंकि नहीं तो क्या तुम्हारी आदत बन चुकी है पैसिव, और अभी हम किस मोड में, एक्टिव मोड में रहना है, क्योंकि जितना माइंड वर्क करेगा उतना बेनिफिशियल होगा। कौन सा, नहीं जैसे ऑनलाइन जो है जब करते हो तो तुरंत फोटो खींच के मैं देख लूंगा ना उस समय, जैसे मैं तुम्हारा लोगों को तो देख ले रहा हूँ, तो पता लग रहा है माइंडसेट क्या चल रहा है, क्योंकि अभी मुझे इंप्रूव कहाँ करना है, कंटेंट पर या माइंडसेट को, माइंडसेट को इंप्रूव करना है। कीवर्ड यही है, हाउ यू कैन मेक ए ट्री, कि क्वेश्चन तुरंत समझ में आएगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक बर्डन, समझ में आ रहा है। So UPSC is giving the answer, or they are asking the question? They are giving the answer. What is the answer? This is becoming this. Why? Absence. What? Effective reproductive without absence of effective reproductive health. पॉपुलेशन प्लानिंग पॉलिसी। अब यहां तुम्हें आंसर आता है, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। ठीक है, समझने को तुम समझ लो, तुम्हारे माइंड में तो वही चलेगा, फैमिली प्लानिंग
बट ये चेंज नहीं करना, एग्जाम में जब होगा ना हेडिंग वही डालनी है जो क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की अगर डिमांड्स फाइंड आउट करूं, दिस इज बिकमिंग दिस मींस एट द लेवल I should have understanding of this. I should have understanding of this. Why I have put this question in level 3? कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये पढ़ाई नहीं है तब भी पता होना चाहिए। अब क्या है, दिस इज बिकमिंग दिस इन द एब्सेंस ऑफ दिस, so how this absence of this is leading this to this one, how the absence of this leading this to this। अब मुझे इसको समझाने से पहले सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड मींस population is a resource, it is giving some positive feedback, positive loop to the economy, socio-economic development, but this is becoming burden means अब burden में थिंग क्या हो सकती है, health is not there, education is not there, or there are problem, labor productivity problem is there, or government have to spend so much on this population, so quality of population, so generation to consumption, यही चीजों में यहां सीखनी है। We are knowledge consumer, but we have to become knowledge producer। वो बात लगी कंजम्पशन से क्या आएगा, प्रोडक्शन आएगा, बट हम कंज्यूमर ही बन के रह गए। इसलिए देखो इंडिया में बुक्स कहाँ है, बहुत कम। ये गौर किया कभी, तुम्हारा प्रॉब्लम का कारण भी क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन भी रिफाइंड होना चाहिए, गुड वर्ड्स बनाने लगे हो आजकल। तो अब मैं पहले इसको सोचवाता हूं क्योंकि ये हमने पढ़ा है, ये पहले इसको सोचवाऊं। ये इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, तो हाउ यू कैन से एनी वन पॉइंट वेयर यू कैन शो दैट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग पॉलिसी इज नॉट, so planning the population, not plan the population, so I'm not focusing on health, education, so not health and education, number is there, it is becoming burden, skill is not there, skill is not there, when skill is not there, government is giving allowances, subsidies, how other you can say। देखो अब यहां पर मुझे क्या करना है, इसके पॉइंट ए बी सी डी निकालने। Now I have to connect this A with, बचपन में क्या करते थे, A set is there, B set is there, now तुम्हें वहां पता होता B set is equals to C, और प्रूव करना होता था A equals to C, क्या करते थे, B के लेट से B element is there, B1 is there, B2 is there, B3 is there, A के A1 is there, A2 is there, A3 is there, करते क्या थे तुम, प्रूव क्या करते थे, एक एक एलिमेंट को लेके चलते थे ना, सेम चीज। इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग, एक पॉइंट निकाला, कनेक्ट किया, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग पॉलिसी इज देयर, so when effective family planning policy is not there, so in this context they are not giving due attention to the rights of the woman, due attention to the psychological health of women, so when this is there क्या होगा, child which will come weak, malnutrition, etc, labor productivity, lack of proper socialization, marginalization, हो गया। बहुत सारे पॉइंट है, अब कनेक्ट करना सीख रहे हो ना, समझ में आ रहा है कंटेंट है कि नहीं, कंटेंट को क्या करना है, घुमाना है। अब इसमें तुम्हारे पास अगर 10 पॉइंट होंगे, 10 को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें वहां सोचना होगा विच विल बी माई प्रायोरिटी, विच विल बी माई प्रायोरिटी, बिकॉज यू नो द प्रॉब्लम, इफेक्टिव फैमिली प्लान। अब इसको देखो, यूपीएससी को करने का ये तरीका है, इसको मैं क्या कहता हूं, एक्स तरीका है, वाई तरीका है, जेड तरीका है। ये नहीं करना है तो ये भी तो मेरा इस तरह सजेशन होता है ना। तो एक तुम लिखा नॉट इफेक्टिव, दिस इज बिकमिंग दिस, एक तरीका हो सकता है, व्हेन दे आर इफेक्टिव दिस विल नॉट बिकम
दिस विल कम दिस, इस तरह के पॉइंट भी लिखे जा सकते हैं ना, समझ में आया? ये कई बार तुम्हें हेल्प करेगा। मान लो तुम्हें 2 ही पॉइंट आ रहे कहीं, दूसरा आ ही नहीं रहा है, एक को पॉजिटिव लैंग्वेज में जनरेट करो, एक को किस में जनरेट करो, नेगेटिव लैंग्वेज से जनरेट करो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव लैंग्वेज सोचने का तरीका है, नेगेटिव सोचने का तरीका, कई बार हेल्प करेगा ये। अब मान लो ये है इफेक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस institutional delivery. When institutional delivery is not there, malnutrition, वो एक ही पॉइंट को लेते हैं ना भाई, when institutional delivery is not there, malnutrition, when institutional delivery is not there, hygiene, etc problem, so the next generation which is coming, health, stunting, etc problems are there. अब ऐसे ही effective reproductive health, when it is costly, when accessibility issue, क्या होगा? पॉवर्टी साइकिल ड्रॉ कर दो। when costly, people are in the loop of vicious cycle of poverty. When vicious cycle of poverty, this, अब ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि इसको पढ़ना है, समझ में आया? डिमांड, और मैंने क्या किया, डिमांड के जस्ट एक स्टेप आगे भी बढ़ाऊं, क्या पॉइंट, समझ में आया? मैं आज उतना ज्यादा जनरेट नहीं करवाऊं, बस सोचने का तरीका। अब मुझे अगर आंसर लिखना हो, स्ट्रक्चर सिंपल, आई कैन गो इन द इंट्रो, देन आई कैन ब्रिंग द हेडिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। मैं ये कीवर्ड बोलूंगा, बहुत सारे हो सकते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट, हाउ दिस इज डूइंग दिस, फर्स्ट हेडिंग, हाउ दिस is leading to this second heading, then way forward so that this should not become this. In this context, reform here, then my general reform. मैंने ये क्यों बोला यहां रिफॉर्म, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है। मैंने ये क्यों बोला, क्वेश्चन कंटेक्स्ट। अब मान लो इन द एग्जाम हॉल मेनी ऑफ टाइम ये हो सकता है कि तुम्हें ये पता ही नहीं लग रहा हो, दोनों को एक ही हेडिंग, और इसमें क्या होगा, some points which you are writing here, उसके कुछ पॉइंट तो ये होंगे ना जो एग्जाम में यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, तो एग्जामिनर को गलत प्रेजेंट करने से अच्छा क्या करो, एक ही हेडिंग दे दो। ये होगा कई बार, इस तरह की स्टाइल यू हैव टू अडॉप्ट इन आंसर राइटिंग क्लासेस। यू आर गिविंग वन हेडिंग, यू आर गिविंग वे फॉरवर्ड एज ए जनरल हेडिंग, तो स्ट्रक्चर दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, here, either here or यहीं पर, this is becoming this, and in this context this region, this region, this region, but these two are, जो मुझे बोलेगा ना उन्हीं को बोल दूंगा सबसे बड़े यही है, समझ में आया ना? और due to this region, comma, due to this region, अब मैं एक बार इंट्रोडक्शन की क्लासेस अलग से लूंगा, बहुत सारे उसके मेथड्स हैं, बहुत सारे उसके क्या है मेथड्स, बस इंट्रो अभी से ये ध्यान रखना है, by seeing the introduction, when someone is not has seen the question, इंट्रो पढ़कर तुम्हारे समझ में उसको आ जाना चाहिए क्वेश्चन क्या है, बट ये सब में नहीं होगा, तो कई बार सिंपल भी अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड इज लीडिंग टू डेमोग्राफिक बर्डन, एंड फॉर दिस मेनी रीजंस आर, दीज टू कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन कॉपी में तुम्हें बहुत कम यू विल राइट, मेनली दिस विल चेंज योर न्यूरॉन्स, मेनली इट विल चेंज योर न्यूरॉन्स, और 2-3 क्लास में अगर इफेक्टिव रहे हो तो समझ में आने लगा होगा, चेंज होने लगा है, वो चेंज होगा। क्लियर? कंटेंट सेम या डिफरेंट, यू हैव टू चेंज। एक होमवर्क है ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पॉपुलेशन चैप्टर एंड सेटलमेंट चैप्टर, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट 2 चैप्टर है वहां पर, दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी
एंड इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑल्दो ज्योग्राफी जब आएगा ह्यूमन मैं करवाऊंगा, बट अभी ये जब टॉपिक हो ही रहा है तो इसको कवर ही कर लेना, तो उसके बाद मुझे तो अभी क्या समझाना है, डिमांड, पॉइंट, स्ट्रक्चर, इसको एक बेसिक थिंकिंग तुम्हें देना है। मीन्स आई हैव टू गिव द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, बट दीज बेसिक्स को ही मुझे क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। और कुछ कुछ जनरल चीजें तुम्हें यहां से पता लगी होगी, टाइमलाइन अप्रोच, सोचने का तरीका, इफ आई डोंट नो द पॉइंट्स हाउ आई कैन जनरेट द पॉइंट्स। वैसे कमांड, इस तरह के डायग्राम कहां बनने चाहिए, शुरू में इट विल टेक टाइम, विल टेक, tomorrow I will go through with this topic population, problem in India, why the problem in India, थोड़ा समझाकर फिर यूपीएससी के एक बार सारे क्वेश्चन हो। कल चीज तुम्हें ये भी सिखानी है, you know the x, you know the x, you don't know the y, but how through this you can reach to the periphery, और उसी को चीजें क्या करनी है, कंसल्टेट। बिकॉज मैं कुछ अज्यूम कर रहा, जिसमें यहाँ आईएमआर, एमएमआर मैंने आई हैवंट टॉट यू, वो जरूरी नहीं था क्योंकि वो बेसिक्स हैं, बट दिस इज एक्चुअली राइट नाउ फॉरगेट अबाउट दिस वर्ड, क्रिटिकल एग्जामिन, एग्जामिन छोड़ दो इसको, और क्रिटिकल एग्जामिन का एक मिथ हटा देना, इट इज ऑल अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। व्हाई? अगर ऐसा होता तो यूपीएससी नहीं पूछता क्रिटिकली एग्जामिन the pros and cons of triple P in 2013. In 2015, critically examine pros and cons of contract farming. और सब जगह कहाँ क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एग्जाम में प्रोज लिख दो, कॉन्स लिख दो, वो नहीं होता मीनिंग। तो रेडी, क्वेश्चन कंटेंट इज इसी को कल मुझे एक दो क्वेश्चन से कंसोलिडेट करवाना है, इसलिए आई विल बी स्लो इनिशियल क्लासेस। एनी मोर डाउट? डाउट होना चाहिए। उसी को हम स्लोली बहुत से टूल्स के थ्रू स्लोली करेंगे। एक बार हम सिलेबस के थ्रू स्टेबल अप्रोच, सिलेबस अप्रोच से जाएंगे। नहीं, वो मैं नोट्स जब पॉलिटी वगैरह, क्योंकि वहां पर है, अदर यहाँ पर क्या वो बहुत रैंडम होगा, तुम किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे, बट और शुरू में पढ़ना भी नहीं है, मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा ना, उसके बाद तुम्हारे नोट्स में तुम्हें दिखने लगेगा, फिलोसॉफी तुम्हें ही दिखने लगेगी, क्योंकि फिर ईच एंड एवरी टॉपिक को तुम उस तरह पढ़ ही नहीं सकते, फिर तुम्हारा पूरा टाइम एंडलेस एफर्ट हो जाएगा। तो मैं अगर 15-20 टॉपिक तुम्हें इस तरह पढ़ा दूंगा, तुम उसी तरह फिर सोचोगे फिलोसॉफी क्या है, सोचना कि मतलब तुम्हारी नीड प्रॉब्लम से क्या आ जाएगा, वो वाई आएगा। बिकॉज वाई आई एम सो फोकसिंग ऑन दैट फिलोसॉफी, बिकॉज द वे दे आर माउल्डिंग द क्वेश्चन एंड द वे दे आर मेकिंग द क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, उसकी कोर को हिट करने में वो फिलोसॉफी काम आएगी। लाइक यू हैव रेड द एडीएल, और यूपीएससी का एडीएल समझ में नहीं आएगा जो क्वेश्चन पूछा है उसने, एंटी डिफेक्शन लॉ। सिमिलरली प्रिविलेजेस, RPA में भी you should know the philosophy, basic of RPA, because on the name of RPA we are mugging the provisions, वो नहीं होना चाहिए। ये है कुछ चीजें, ये कुछ है, और उसमें when group is there तुम उस समय मुझसे पूछ सकते हो, मैं मना भी नहीं करूंगा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो you can read। हाँ, ये बात है कि ओरिजिनल रीडिंग से ही वो बनता है, and for that original reading you have to stick to the NCERT, and now you have to read the NCERT from a different angle, तो वहीं तुम्हें पिक्चर दिखने लग जाएगी, हाउ उस लाइन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा।
समझ में आया? और जेन्युइन डाउट है ये तुम्हारा? उसी को हमें करना है. इनिशियली व्हेन यू विल राइट द आंसर, you don't have to bother about the word limitation. Write 3 or 4 pages because your original thinking should come out. Once you are able to express 3 or 4 lines को हम 1 line पे कर देंगे, but on the name of word limit, once your thought is corrupt, तो improve नहीं होगा. वो एक्सप्लेनेशन भी ऐसा होना चाहिए कि एक लाइन में क्या कर दिया तुमने, एक्सप्लेन कर दिया. ये नहीं कि 4-5 लाइन तो लगा उसी पैराग्राफ में चली गई. Initially you should express and you can go for that, then you have to change. और उसमें फिर हमें AI का यूज करना, because people are going for the AI but they don't know how to use the AI. You can have a mastery over AI once you know what is the algorithm, which command you should give. Once you know I am framing this type, I am framing bulky sentences, bulky paragraph, उसको command दो, I am thinking like this way, how it can be converted into the. समझ में आया? और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ऐप का एक्सेस भी होगा, जो ऑनलाइन होंगे ऐप से भी डाउनलोड कर लेना. कल परसों मैं ग्रुप बना दूंगा, वैसे कल से मैं ग्रुप बना दूं. ठीक है? अभी जो तुम्हें जनरल कंटेंट चाहिए वो दे दूंगा, बाकी जो सेशंस होंगे ना उसके क्वेश्चंस मैं साथ साथ देते रहूंगा. और कोशिश करो हफ्ते में एक क्वेश्चन तो मुझे कम से कम दिखाना ही है, दिखाना ही, क्योंकि वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा. क्योंकि फर्स्ट आई हैव टू गो इनटू योर माइंडसेट बिफोर चेंजिंग योर आंसर. तो वो माइंड को पहले चेंज करना है, ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा. फिर तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, लिखना प्रॉब्लम नहीं है, पहले सोचना प्रॉब्लम है, फ्रेमिंग प्रॉब्लम है. और हम फालतू में जा रहे कहां पर, आंसर लिखना नहीं आ रहा है. टेस्ट इज द फाइनल. ओके, तुम्हारो 5. और जब तक मेरा मैसेज नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट क्या है, क्लास है, चाहे आंधी है चाहे बरसात आए, कुछ भी आ जाए. क्योंकि यहां कोचिंग की तरह ये मत समझना कि पंक्चुअलिटी मतलब पंक्चुअलिटी है, क्योंकि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तुम हो. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चाहे 1 आएगा चाहे 50 आएंगे, क्लास चलेगी मतलब चलेगी.